Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. So, last class में हम ग्रोथ ऑफ रूट्स इन ऑनियन बल्ब, तो ये एक्सपेरिमेंट हम देखे थे कि कैसे ऑनियन के रूट्स ग्रो होते. नाउ इन टुडेज क्लास लेट अस रीड द कन्वर्जेशन. One day Harita went to a park with Lata. There she saw a gardener cutting the tips of the plants with a cutter. She had a doubt and asked the gardener to clear it. ठीक है ना. वन डे हरिता क्या करे, शी वेंट टू ए पार्क विथ लता. उनके फ्रेंड लता के साथ पार्क गए होंगे. तो देर शी सॉ ए गार्डनर. गार्डनर यानी कौन? वन हु लुक्स आफ्टर द गार्डन, यानी माली को. तो क्या कर रहे थे उन्होंने? प्लांट्स के टिप्स को कट कर रहे थे. तो उनको डाउट आके उन्होंने गार्डनर से पूछे. सो लेट अस रीड द कन्वर्जेशन. हरिता का और वो गार्डनर का कन्वर्जेशन. लेट अस रीड द कन्वर्जेशन. हाउ डू द प्लांट्स ग्रो इफ़ द टिप्स हैव बीन कट ऑफ. अगर तुम ये प्लांट के टिप्स काट दे रहे तो प्लांट्स कैसे ग्रो होते? ही सेड ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द साइड्स. क्या बोला नो? ही सेड ब्रांचेस विल ग्रो फ्रॉम द sides. Later she saw another gardener watering a stump. Later she saw another gardener watering a stump. अब दूसरे गार्डनर की तरफ जब उन्होंने देखे तो he was watering the stump. She went there and asked, why are you watering the stump? So what he said, the stump will soon bear leaves, he said. What he said? The stump will soon bear the leaves. Harita had a question in her mind. How will the leaves come? Do you know the answer? Now we will study about those tissues that bring about growth, repair and other functions in a plant body. So what are the plant tissues? Plants में भी some types of tissues है. So what are they? There are four basic types of tissues in the plants. There are four basic types of tissues in the plants. What are tissues? Group of cells. Group of cells are known as tissues. What are tissues? Group of cells are known as tissues. So there are four basic types of tissues in plants. They are, first one, tissues that bring about overall growth and repair are called as meristematic tissues. What are meristematic tissues? Tissues that bring about overall growth and repair. ठीक है ना. पूरे प्लांट में ग्रोथ और रिपेयर को कौन से टिश्यू रेस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. Next, second tissue is the dermal tissue. Tissues that form the outer coverings. Tissues that form the outer coverings are called as the dermal tissues. ठीक है ना. So outer coverings, plant का जो outer part है उसकी covering को कौन form करते हैं? Dermal tissues. Third tissue is the ground tissue. Tissues that form the bulk of the plant body, helping in packing other tissues, are called as ground tissue. Bulk of the plant body help in packing other tissues are called as a ground tissue. तो जो टिश्यूज़ दूसरे टिश्यूज़ के पैकिंग में हेल्प करते ऐसे टिश्यूज़ क्या है? ग्राउंड टिश्यूज़. फोर्थ टिश्यू इज़ द वैस्कुलर टिश्यूज़. टिश्यूज़ दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स. प्लांट के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में कौन से टिश्यूज़ हेल्प कर रहे हैं? वैस्कुलर टिश्यूज़. सो यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड some type of tissues. To observe various types of plant tissues, we need to know some techniques for preparing slides and cutting sections. So ये टिश्यूज़ को हमको माइक्रोस्कोप में, यानी इनका क्लियर पिक्चर अगर हम देखना चाह रहे तो ये सेक्शन कट करके हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता. तो फर्स्ट वन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ ए स्टेन्ड सेक्शन ऑफ ए शूट टिप. शूट यानी स्टेम. स्टेम की टिप को लेकर माइक्रोस्कोप में जब हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था उसका. एल एस ऑफ ए शूट टिप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. सो फ्रॉम द एबोव फिगर यू कैन इन्फर दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट ऑन द टिप. है ना. टिप यानी प्लांट का जो आउटर लेयर, लास्ट ऊपर के तरफ जो टिप्स रहते हैं वहाँ पर कौन सी टिश्यू रहती? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. साइड्स एंड बिटवीन लेयर्स ऑफ अदर टिश्यूज़ कहाँ पे रहती है? टिप्स पे, साइड्स में एंड इन बिटवीन द layers. Meristematic tissues at the growing tip that bring about growth in length are called as apical meristematic tissues. ठीक है ना. Tissue that
ग्रोइंग टिप यानी ऊपर की तरफ जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं वो टिश्यूज़ क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट अराउंड द एडजस in a lateral manner and giving rise to growth in the girth of the stem are called as lateral meristematic tissues, also called as a cambium. तो जो एडजस्ट में है, साइड्स में जो टिश्यूज़ रहते हैं प्लांट के, जो साइड की बॉडी ऊपर का हिस्सा छोड़ के ऊपर के हिस्से को क्या बोल रहे हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और जो साइड में है वो टिश्यूज़ क्या है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ cambium. It is also called as a cambium. Areas from which branching takes place or a leaf or a flower stalk grows, we find a kind of meristematic tissue called intercalary meristematic tissue. Okay, so ब्रांचिंग जहाँ पर हो रही है, आप लोग प्लांट्स के ब्रांचेस देखे होंगे, तो जहाँ पर लीफ फ्लावर ग्रो हो रहा ना, तो वहाँ पे कौन सी टिश्यू है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट्स के ब्रांचेस में जहाँ फ्लावर्स, जहाँ लीव्स होते ना, वहाँ पर कौन सी टिश्यू है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन सी टिश्यू है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. So we have already observed the tissues present in the root tip in the earlier activities. कौन सी एक्टिविटी में, या ऑनियन में हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि रूट टिप्स पे कैसे रहते हैं स्ट्रक्चर रूट्स का. So can we find the above tissues in the root tip as well? So इसके लिए एक्टिविटी 6 है, कंपैरिजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन रूट एंड शूट टिप्स. ठीक है ना, तो रूट के टिप्स में भी ये टिश्यू रहती क्या, शूट के टिप्स में भी ये टिश्यू रहती क्या. सो इसके लिए केयरफुली ऑब्जर्व द फिगर्स ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप. डू यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बिटवीन द टू? नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल. ठीक है ना, रूट टिप को और शूट टिप को. रूट टिप कहाँ पर है, ये है रूट टिप, ये रूट टिप का स्ट्रक्चर है. और शूट टिप कहाँ पर है, ये शूट टिप है. तो दोनों को ध्यान से देखना है और दोनों के सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमें ये टेबल में लिखना है. तो एट द टिप शूट टिप कैसी है, रूट टिप कैसी है. एट द लैटरल साइड्स शूट टिप कैसी है, रूट टिप कैसी है. एट द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग रूट टिप कैसी है, शूट टिप कैसी है. ठीक है ना. फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट बोथ इन द रूट टिप एंड शूट टिप. ओके ना. तो इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रूट टिप में भी है और शूट टिप में भी है. सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल एंड हैव थिन सेल वॉल. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसा रहता है, इंपॉर्टेंट है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर, कैसे रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स, स्मॉल एंड हैव थिन सेल वॉल. स्मॉल एंड हैव थिन cell wall, living with prominent nucleus and abundant cytoplasm. क्या है इसमें, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. सेल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है. सेल्स क्या है, टाइटली पैक्ड सेल्स है. सो दे आर अरेंज्ड विदाउट द इंटरसेल्युलर स्पेसेस. कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स. सेल्स क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, इसलिए ग्रोइंग टिश्यू है ये. ठीक है ना. जब सेल्स हमारे कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे हैं तो हमारी हाइट भी क्या है, बढ़ती. अब कोई सपोज वेरी टॉल है पर्सन, कोई बहुत टॉल है, तो उनको देख के हम बोल सकते हैं कि इनमें सेल डिवीजन ज़्यादा हुआ. अगर कोई पर्सन की हाइट बहुत छोटी है, स्मॉल है, शॉर्ट है वो पर्सन, तो हम बोल सकते हैं कि इनमें सेल डिवीजन कम हुआ. तो जितना हमारे अंदर सेल डिवीजन होता, हमारी हाइट क्या है, उतनी बढ़ती. तो यहाँ पर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या खासियत है, क्या है इसकी, कि इसमें सेल्स क्या है, कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, इसीलिए ये ग्रोइंग टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप, ड्रॉ लेवल. देखो ये डायग्राम, सॉरी एक्टिविटी 7 है ये, एक्टिविटी 7. डाइकॉट स्टेम टिश्यूज. तो डाइकॉट यानी क्या, जिसके अंदर सीड में 2 कॉटिलिडन्स रहते. सीड के अंदर 2 कॉटिलिडन्स रहे तो डाइकॉट बोलते. तो ऐसे प्लांट्स क्या है, डाइकॉट स्टेम्स, डाइकॉट स्टेम टिश्यूज. प्रिपेयर ए टेम्पररी माउंट ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम का टेम्पररी माउंट हमें प्रिपेयर करना है, यानी स्टेम को हॉरिजॉन्टली कट करके उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना. तो ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप.
ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम, कंपेयर इट विथ फिगर गिवन बिलो। सो फिगर को देखिए ध्यान से, डाइकॉट स्टेम है। सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टिश्यूज इन रूट एंड शूट एज शोन इन द अबव फिगर? Are all the cells similar in shape and structure? What are the similarities? ये सारे cells similar in structure, shape, सब सेम है क्या? हमको कंपेयर करना है। तो how many types of arrangement of cells could you see in the given figure? कितने cells arranged है? 1, 2, 3, 4 types of cells are arranged. So you have already studied about the meristematic tissues. The other major groups that we shall study now are dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. So these develop from the cells of the meristematic tissues during the growth and repair of the plant parts. ठीक है ना, ये tissues किस में हेल्प करते हैं? During the growth and repair of the plant parts. ये dermal tissue, ground tissue and vascular tissue कहाँ से develop हो रहे? From the meristematic tissue. Dermal tissue, ground tissue and vascular tissue are developed from the meristematic tissue. So second tissue, dermal tissue. So what kind of arrangement do you observe in the outer layer of the TS of stem? So we can find the dermal tissue over the entire surface of the plant body. Plant body के entire surface पे कौन सी tissue है? Dermal tissue. So we will do the following activity to observe the dermal tissue more closely. So what is activity 8? Rio leaf. Dermal tissue. Take a fresh leaf of Rio or beetle plant. ठीक है ना, फ्रेश लीफ लेना है हमें रियो या फिर बीटल प्लांट की। टेयर इट इन ए सिंगल स्ट्रोक सो दैट ए थिन वाइटी शेड्स कैन बी सीन एट द टॉन एंड। उसको हमें इतनी बारीकी से फाड़ना है कि हमें वो एड्ज जो है बारीक दिखना बहुत। तो हमको ये ऐसा डायग्राम दिखाई देता। पील ऑफ द रियो लीफ, डर्मल टिश्यू ऐसी रहती डर्मल टिश्यू, ठीक है ना। स्लोली रिमूव इट एंड ऑब्जर्व दैट पील अंडर द माइक्रोस्कोप, सी द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। This activity shows a part of the dermal tissue of the plants. Dermal tissue usually consists of a single layer of cells showing variations in the type of cells on the basis of their function and location. Dermal tissue कितने cells है, कितने layers है इसका? सिर्फ only है single layer showing variations in types of cells on the basis of their function, ठीक है ना। वो dermal tissue के function पे variations रहते cell में, cell में variations रहते। These tissues are divided into 3 different types. Again, dermal tissue is divided into 3 different types. They are epidermis, stomatal guard cells and epidermal hairs. Okay? किसमें कितने में divided है फिर dermal tissue? Dermal tissue is again divided into 3 types. They are epidermis, stomatal guard cells and epidermal hairs. Stomatal guard cells and epidermal hairs. The walls of the cells of dermal tissue are comparatively thicker than the cells of the meristematic tissue. meristematic tissue से भी ज़्यादा थिकर है इसके सेल्स, किसके? dermal tissue के, ठीक है ना। थिक यानी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मोटे है ये सेल्स। The walls of the cells of dermal tissue are comparatively thicker than the cells of the meristematic tissues. In desert plants, it may be even more thick and waxy. Desert plants यानी एग्जाम्पल कैक्टस, ओपनशिया, एलोवेरा, ये सारा क्या है? डेजर्ट प्लांट्स है। तो ये डेजर्ट प्लांट्स में ये डर्मल टिश्यू क्या है? बहुत ज़्यादा थिक और वैक्सी रहेगा। स्मॉल पोर्स आर सीन इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। स्मॉल पोर्स यानी टाइनी होल्स आर सीन इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। क्या बोल रही है स्मॉल पोर्स को? स्टोमेटा, ठीक है ना। स्मॉल पोर्स आर सीन इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. These pores are called as the stomata. They are enclosed by the 2 kidney-shaped cells called guard cells. They are enclosed by the 2 kidney-shaped cells called as guard cells. These are the guard cells. ये जो green part दिख रहा है हमको bean shaped या फिर kidney shaped cells, these are known as the guard cells. These are known as the guard cells. So the cells of the roots have long hair-like parts called the root hairs. Root को long hair-like structures are present. These are called as the root hairs. So आज की क्लास में इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आई होगी।
थैंक यू।